हाँ नहीं, मैं ट्राई बिल्कुल करूंगी, लेकिन वही है कि थोड़ा सा हो जाता है, मेरा भी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाती रेगुलरली। तो कोई बट बात आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं। Yeah, no problem. But you should hear the experiences of the people who are very regular. They are having amazing हम्म। benefits. तो मेडिटेशन तो ऐसा नो नहीं है डाउट। ना कि खाना हमको अपना बॉडी ठीक करने के लिए हेल्दी खाना है एंड एवरीथिंग। हम वंस इन अ वाइल चीट डाइट करते हैं, बट हमेशा तो नहीं करते ना कि बिल्कुल ठीक बिल्कुल है संडे वाले दिन चीट करेंगे, दूसरे दिन। लेकिन देखिए, मैं अभी आई हूँ योगा से, मैं तो बोल सकती हूँ ना कि अरे एक दिन योगा करूंगी और 6 दिन नहीं बिना नहीं योगा के मैं फिट रहूंगी। या नहीं नहीं, ऐसा हाँ बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी रेगुलर रहने का। एंड And the people लेट्स who are सी। regular every morning, you should hear their experiences, how beautiful experiences they are sharing. Every day, almost every day, questions होते हैं सेवा, questions are सेवा, experiences sharing are सेवा. Yeah. हम्म। तो या बट थैंक यू, एटलीस्ट आपने ज्वाइन किया, इतने दिनों बाद आपने ज्वाइन किया। दैट इज ऑल्सो दैट एटलीस्ट यू आर। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा हमारा कर्मा भी इनफ नहीं है, हमारा भाग्य भी इनफ नहीं है टू इवन, बोलते हैं ना कि इवन टू गेट ग्रेट थिंग्स इन लाइफ यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो कभी कभी करेक्ट। हमारे पास सौभाग्य भी नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए इसीलिए मैं दोष भी नहीं देती हूँ, शायद उतना सौभाग्य नहीं है जीवन को उतना चेंज करने के लिए। अगर आप इस तरीके से देखें तो आप में ना वो आएगा डिटर्मिनेशन कि मुझे तो अपना मोटिवेशन थोड़ा। सौभाग्य बनाना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसीलिए आज भी मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, क्योंकि इतने टाइम से मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, तो इसीलिए मैं मेरे को थोड़ा आज हेजिटेशन भी हो रहा था ज्वाइन करने से पहले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन देन किया आई वही ज्वाइन। हाँ हाँ, यू कैन ज्वाइन वंस इन अ while whenever। बट वही आपको आप खुद से डिसाइड करिएगा कैसे मुझे एवरीडे अपना सौभाग्य को बनाना है, गुड फॉर्च्यून बिल्कुल एक्यूमुलेट करते रहना है। Okay. So yeah, first of all, I really want to start with thanking my volunteers. I'm so happy. मैंने कुछ दिनों से थैंक यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोग सबको डांट मिला। All of you were not understanding the importance of seva, and you were on your own doing all itna, और मैं भी I was just seeing, observing for some time, and then you got a good thrashing from me कि क्या हो रहा है, what are you guys doing? And then again, like what happened is, I like Nipa got the most of the thrashing, I think. And then she started, she said she had her challenges, so I don't blame her. So, and she started making the cover pages. Okay. And I wanted to see how, without getting any recognition, any validation, maybe cover page nahi laga rahi hu, whether she's sincere or not. Okay. I was not putting the cover pages for a long time, and I was just avoiding. And I was just seeing whether, even if I'm avoiding, I'm not putting cover pages, I'm not doing anything, not thanking, not doing anything, whether she's continuing or not. And you can't believe the kind of cover pages she has made, you know, the amount of cover pages she has made. एक के बाद एक के बाद एक बना बना के मुझे लगता है कि कितना बना दिया है। एंड मैं ऑब्जर्व कर रही थी, बट आई वाज लाइक नो, नो, she should learn her lesson and then I will thank her. And I think you have done almost all of them. You are regularly watching what is happening and regularly making all the cover pages, right, Nipa? Till the first one, I think, till the, I think, even the latest one. So yeah, thank you so much. You should go and watch the cover pages at least till tea meditation. मैंने सब कुछ post कर दिया. That's amazing. I also want to thank Ruchi. Oh my God, the this lady, she was in lovely Nipa. I'm so happy. I'm so happy that you have learned your lesson of seva. No, no, thank you, no validation, no posting, and still she's doing. Fantastic. And another example is Ruchi. How usne
like, you know, even when she was traveling, her example is like she is traveling to Goa. I told her, don't post messages. I don't want you to post messages. I will post the message if needed, but you should have fun in Goa. But she kept posting the messages even from Goa. Okay. And even now she's not well. She has extreme gum issues. Itna pain hai, itna tabiyat kharab hai, lekin you will you see a message not coming from her at night? She will every night send a message. Okay. This is the seva, and see the blessings it is also coming in their life. See the experiences they are sharing. कितने अच्छे अच्छे experiences, कितना transformation इनके जीवन में हो रहा है because they are doing seva. Okay. And there are others, Tonmoy and other people who are always regular, at least in messaging and everything, and I'm so grateful that they're doing their job. And other people who are doing seva even without being volunteers are like Shubhra, Bodhi. They are like, you know, every day asking questions, sharing their experiences. Wow, fantastic. You know, Bodhi जैसे अपना क्वेश्चन पूछती रहती है कि ये हुआ है वो हुआ है. हाउ बोधी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, शुभ्रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, दूसरों दूसरों को एनकरेज करने के लिए क्वेश्चन पूछती है, सेवा करती है. दे आर सच ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स कि आप लोगों को समझ में आया है इसकी सेवा क्या है. और अगर सेवा से क्या होता है चेंज, यू कैन सी माई लाइफ, हाउ माई लाइफ इज चेंजिंग. Without thinking, I just give and see how it comes back to me. Okay. So thank you very much, friends. Now I move on to today's topic. What is today's topic? It is 48th verse. Okay. So, but I think Nipa will not be able to show her. I told them that I will be. Yes, this is Ruchi. If people don't know, this is Ruchi. Okay. And Ruchi, say hello to everybody. Hello to Happy Dee. I think she doesn't know you. She is one of our volunteers, Happy Dee. Hello And everyone. Hi, Hello, Ruchi. Happy Didi. yeah, Hi Hi, Dee. hi. yeah. And Nipa, I don't think you will be able to show your video, right? Because it's late night, early morning in Denmark. That's fine. Okay. Others we will see in the evening. Okay. Friends, so today's topic is the 48th verse of the Lao Tzu, Lao Tzu's Tao. Okay. एंड ये छोटा सा वर्स है लेकिन इतना ब्यूटीफुल वर्स है फ्रेंड्स, एंड इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है. ये इतना ट्रांसफॉर्मेटिव वर्स है कि मैं क्या बोलूं. इट्स वेरी स्मॉल, द पैराग्राफ बहुत छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. ओके. Learning consists of daily accumulating. The practice of Tao consists of daily diminishing, decreasing and decreasing until doing nothing. When nothing is done, nothing is left undone. True mastery can be gained by letting things go their own way. It cannot be gained by interfering. Okay. So the first point is learning consists of daily accumulating. The practice of Tao consists of daily diminishing. यहाँ पे ना ये बोला गया है कि हमको ना हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है ना. वैलिडेशन कैसे? पढ़ाई करके कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया है आज कुछ सीख के, या फिर कोई डिग्री हासिल करके, या कुछ किसी किसी की बीवी बन के, किसी का गर्लफ्रेंड बन के, फिर किसी की माँ बन के. हमको हमेशा लगता है कि दीज आर वैलिडेशंस. कोई मुझे प्यार करेगा, कोई मुझे देखेगा, एंड देन आई विल be able to feel validated and important. It's like an accumulation. Daily basis में हम accumulate करते रहते हैं validation के लिए. Friends, my battery is very low. Just give me 2 minutes. मुझे charging पिन लगाना है.
ओके, सो फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, या कि हमको हमेशा लगता है कि चीजें एक्यूमुलेट करके हमको होल कंप्लीट फील होता है, एंड इट इज एन इल्यूजन, ये भ्रम है। क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज साथ में ले जा सकते हो, मरने के बाद कुछ भी नहीं ले जा सकते हो अपने साथ। जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है वो आपसे छीनेगा ही छीनेगा, एटलीस्ट डेथ के टाइम में आपसे छीन ही जाएगा। आपका पार्टनर बोलो, आपका आपका बच्चा बोलो, आपके आपका घर बार सब कुछ बोलो, सब कुछ कहीं कभी ना कभी ये एक्यूमुलेट आप कर ही नहीं सकते। टेम्पररी कर सकते हो लेकिन परमानेंटली कभी आपके साथ नहीं होगा। ओके, इवन आपका बॉडी बोलो, बॉडी ही छोड़ देता है साथ, मरने के साथ साथ आत्मा चली जाएगी लेकिन बॉडी को भी साथ लेके नहीं जा सकते हो। बट स्टिल देखिए हम में कितना वो होता है कि हम एक्यूमुलेट करते हैं ऐसे करके, होल्ड 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 होल्ड। ओके, और वैलिडेशन मांगते हैं ना, कितने तरीकों से मांगते हैं। कोई मुझसे प्यार करे, उससे भी एक्यूमुलेट, देखो मेरे दोस्त मुझसे कितना प्यार करते, इससे मैं वैलिडेटेड, इससे मैं, इट्स एन एक्यूमुलेशन अगे, इससे मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो बट रियल जॉय इज इन बिकमिंग नथिंग, इन डिक्रीजिंग थिंग्स। जितना हम अपने आप को अब खाली करना स्टार्ट करेंगे ना, वर्ल्डली लाइफ है कि एक्यूमुलेट करो एक्यूमुलेट करो एक्यूमुलेट करो, बट दाओ द मीन्स द, ये जो डिवाइन का, यूनिवर्स का जो प्ले है, हार्मनी, अगर आप यूनिवर्स से में के साथ रहना चाहते हो तो आपको दाओ स्टेट में रहना है। जितना डिक्रीज करना कर सकते हो उतना करो, और जितना करोगे उतना ज्यादा जॉय आएगा। ओके, become nothing while learning is about accumulating information and knowledge. The Tao is about wisdom which involves letting go. Learning क्या है, दोनों में ना डिफरेंस है। कि लर्निंग है कि आप दिमाग से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दिमाग से। और दाव क्या है ना, वो ज्ञान है जो अंदर से आता है कि आई हैव टू लेट गो। और जो वो जब अंदर का जो भगवान जगता है ना, वो नेचुरली उसको ना आहिस्ता आहिस्ता उसको लेट गो इज द विजडम, उसको वो ज्ञान आता है कि मुझे अभी लेट गो करना है, सब कुछ लेट गो करना है, किसी को ज्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना है। ओके, एंड नॉलेज एंड लिविंग इन हार्मनी विथ योर सोर्स। ओके, एंड दूसरी चीजों पे रिलायंस। हम देख फ्रेंड्स, आपने देखा है सबसे ज्यादा दर्द हमें तभी होता है जब हम किसी चीज से अटैच्ड हो जाते हैं और वो नहीं मिलता है, या फिर वो हमें दुख देता है। दोनों में से एक, या तो वो मिल गया है लेकिन उससे हमें बहुत दुख मिल रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। ओके, हो गया है तो बच्चे के साथ दुख कितने सारे, राइट, चैलेंजेस, तबीयत खराब, ये खराब, फिर हमको लगता है कि अरे यार, पढ़ाई वढ़ाई, उसका ये प्यार हम बहुत करते हैं, बट एट द सेम टाइम देखो वो हमको कहीं ना कहीं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा, अगर हम बच्चे को एक भगवान जैसा ले कि इट हैज कम थ्रू मी नॉट फ्रॉम मी, और मुझे सिर्फ उसको रास्ता दिखाना है, तो आप डरोगे नहीं, आपको दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगा। लेकिन आप जब सोचोगे ना ये बच्चा मेरा है, मुझे उसको कुछ बनाना है जीवन में, ये क्यों नहीं बन रहा है, ये वो, तब देखना वो अटैचमेंट के साथ, बिकॉज आप उसको पोजेस करना चाहते हो, अटैच हो गए हो, उसके साथ पेन एंड स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो सो डिक्रीजिंग योर रिलायंस, we have to decrease our reliance all these kinds of attachment. Okay, and these are nothing but they are like imprisonment. ये हमें, आप देखो कोई भी चीज ना, ये हमें लगता है कि वाह मुझे ये गाड़ी मिल गई है, मुझे ये घर मिल गया है, मुझे कितना कुछ मिल गया है। बट आपने कभी देखा है, वो आपको गाड़ी तो मिल गया है, ओके, लेकिन उस गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच पड़ जाए, क्या दर्द आता है। नया गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया, ओ माय गॉड, कितना पेन वो गाड़ी देता है। अरे भगवान, लग रहा है कि आपसे आपका जीवन ही छूट गया है, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज आपने, ये गाड़ी अभी आपको दर्द देने लगा है। फिर आप गाड़ी को मेंटेन करना है, गाड़ी का इंश्योरेंस बनाना है, गाड़ी का कितना कुछ करना है, गाड़ी को चलाना सीखना है। यू नो इवन गाड़ी, एज फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर फॉर 5 years. And then Panna bought instead of this small car, he sold the small car and he bought a big car. उसके बाद वो गाड़ी को देख के ही मुझे डर लग जाता है और मैं चलाती नहीं हूँ। वो गाड़ी अभी घर पे है लेकिन मैं चला नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पार्क कर पाऊंगी, कहीं पे स्क्रैच लग गया तो, गाड़ी को कुछ हो गया तो। देखो, इवन आई एम थिंकिंग कि गाड़ी को कुछ हो गया तो इस वजह से मैं गाड़ी को चला ही नहीं रही हूँ, राइट।
So this is what this car is doing. It is bringing pre-imprisonment in my life. हम घर खरीद लेते हैं, उसके बाद आपने देखा है कि घर के साथ टैक्स वैक्स, अगर उसमें नहीं रहे हो तो आप रेंट पे देते हो, तो रेंट के लोग आपको परेशान करते हैं, कितनी परेशानी है उसके साथ। कभी टैप खराब हो जाता है, अरे अभी मुझसे पूछो, क्योंकि घर का सब कुछ तो मुझे देखना पड़ रहा है अभी। इवन दो द हाउस, एक बार ये फ्लश, एक बार फॉसेट खराब हो जाता है, एक बार वो खराब हो जाता है, एक बार ये खराब हो जाता है, मुझे लगता है ये भगवान, एक बार लाइट खराब हो जाता है, अच्छा ये भी लगाना है, अच्छा वो भी करना है। And what this is talking is that the more we have something, it has a, आप देखना रेंट के घर में ना आपको इतना टेंशन नहीं होगा। खराब भी हो जाता है तो लगता है अच्छा अच्छा इसको तो छोड़ के जाएंगे, तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ योर रेंटेड हाउस, बट आप देखना कि आपको लगेगा ये तो मेरा नहीं है, ठीक है, बट खुद का है तो फिर से ये भगवान, ये खराब हो गया, टाइल्स, हमारा एक या दो टाइल्स निकल गया है उसमें, पन्ना इज कॉलिंग मी एंड ही सेइंग टेक केयर, मेक श्योर वो टाइल्स ठीक से फिक्स, मुझसे भी ज्यादा वो टाइल्स को फिक्स करना है, ये करना है, वो करना है। खुद का घर है ना, इसलिए इतने टेंशन में है। This is what it is talking about. The more you accumulate, the more you accumulate, it puts you into an imprisonment. It makes you like as if ये आपको hold, ऐसा नहीं बोल, I'm not telling that don't buy anything, don't own anything, but what Osho says, you know own everything, but don't let anything own you. Okay, there's a difference between you owning something and a difference between something else owning you. The moment you start getting attached to things, इसका मतलब है वो आपको ओन करने लगा है, आपके जीवन में परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज से, उस इंसान से। मीन्स कोई भी आप देखो अपने लाइफ में वैसा, या फिर आपके जॉब से, आपके पढ़ाई से, किसी भी चीज को आपको लगे कि ये मैं हूं, ये मेरा अस्तित्व है, वो आपको सफर करवाएगा। ओके, so true mastery is in freeing from attachment. So if I tell you, if you remember, हम लोग रात में क्या करते हैं, हम रात में, मैंने आप लोगों को सिखाया था, महाअवतार बाबा जी आनंद ऑर्गेनाइजेशन का जो सीख है कि रात में आप महाअवतार बाबा जी या फिर यूनिवर्स को आपके सारे अटैचमेंट्स, आपके सारे डिजायर्स जो आपको बहुत परेशान करता है, वो सरेंडर कर दो, डिटैच कर दो अपने आप को। ओके, you detach yourself from all the attachments. ये एक दिन में नहीं होता है, कभी कभी अटैचमेंट इतना टफ है, बट एवरी डे नाइट सोने के टाइम में डिटैच कर लो अपने आप को, जो आई एम गिविंग अवे दिस टू द यूनिवर्स। ओके, बट आई विल टेल यू द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ जीवन में कुछ चीज हासिल मत करो सिखा रही हूँ, बट यू विल अंडरस्टैंड कैसे बिना हासिल किए भी हो जाता है। आई विल शेयर विथ यू। So then he's saying कि देखो, then Wayne Dyer, who is explaining Lao Tzu's this verse, he's saying कि Native Americans ना, उनके टाइम में कभी उन्होंने कभी ओन करना नहीं सिखाया। Native Americans are like shamans, they were like yogis, very enlightened Native Americans, shamanism and everything। जैसे इंडिया के जो हिमालय में योगी होते हैं, अमेरिका में वो Native Americans में बहुत सारे shamans होते हैं, बहुत बहुत एनलाइटेंड लोग होते हैं। उन्होंने जीवन में, पता है, जब इंग्लैंड के लोग गए थे यूएस में एंड दे डिस्कवर्ड दिस नेटिव अमेरिकन्स, उन्होंने देखा कि नेटिव अमेरिकन्स को समझ में ही नहीं आता है ओनिंग ऑफ लैंड किसको बोलते हैं। उनको लगता है कि कुछ दिनों के लिए मैं उसको ये यूज करूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। वो कभी कोई लैंड को ओन नहीं करते थे, उनका कोई हैबिट ही नहीं था किसी लैंड को ओन करने का। या सो दिस इज व्हाट, बट स्लोली स्लोली दूसरे जगह से आके यूएस अभी इतना ज्यादा वो बन गया है, राइट? सो बट नाउ फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, सो दैट लीव इट, डिमिनिश, अपने आप को खाली करो। जैसे वेन डायर बोल रहा है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा चीज है जो आपको पसंद, आपके पसंद का है, या फिर आप सर्कुलेट कर सकते हो, घर में रखो नहीं, उसको दे दो, सर्कुलेट करो, डिमिनिश करो, अपने जीवन से खाली करो। Okay, and I told you about the story of this Bob Proctor, right? A famous manifestation coach, जिसने
जिसने जिनके पास अमिताभ बच्चन, आई थिंक शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, वो लोग गए थे अपनी प्रॉब्लम के टाइम में, और उन्होंने एक मंत्रा सिखाया था। सबसे पहला मंत्रा क्या है? घर को खाली करो। जो भी चीज फालतू की चीज जरूरत नहीं है, 1 महीने से, 2 महीने से, और 1 महीने से ज्यादा अगर यूज नहीं कर रहे हो, ये अब्राहम हिक्स सिखाता है कि अगर 1 महीने से ज्यादा कोई चीज यूज नहीं कर रहे हो तो उसको दे दो। ओके, एंड दिस इज व्हाट बॉब प्रॉक्टर ऑल्सो गेव, कि कोई भी चीज आपको जरूरत नहीं है, दे दो। एंड दिस इज द मंत्रा ऑफ अबंडेंस मनी। जीवन में पैसा कैसे आएगा? आप खाली नहीं करोगे तो वो जगह भरेगा कैसे? अगर आप घर को भर के रख देते हो, अपने आप को भर के रख देते हो, तो नया कुछ घुसेगा कैसे? घुस नहीं सकता है। So this was the mantra, and that's how when they were in problem, Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, they did this and they again came back to track. Okay, so this is what he's also saying कि चाहिए नहीं जो, उसको दे दो। एंड जो सबसे प्यारा है, कभी कभी उसको भी देना सीखो। बहुत प्यारा है, बहुत अटैचमेंट है उसके साथ, बहुत एक साड़ी, बहुत प्यारा सा साड़ी जो आपको बहुत पसंद है। आई डिड दिस, इफ यू रिमेम्बर द पीपल ऑफ डेनमार्क, I don't know whether you remember or not. Nipa is only here. दूसरे या नहीं है यहाँ पे। डेनमार्क को छोड़ने से पहले मैंने अपनी सारी नई पुरानी अच्छी साड़ियाँ सब कुछ दे के आ गई थी मैं। साड़ी, कुर्ता, नीपा को एक कुर्ता मिला था, आई रिमेम्बर। मैं नया कभी नहीं पहना था, यू नो एंड बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे कुर्ते मैंने कभी नहीं पहने। वो ऐसा नहीं कि पहना हुआ दे दिया, एक शायद 2-3 पहना हुआ होगा वो दिया, 1 या 2, और बाकी सारे इट वाज लाइक ऑल न्यू। नीपा गॉट extremely new. I did not wear that, never wore that. I just gave it. And there is a joy in giving, friends. There's a joy of just giving, कि ठीक है, जब भगवान देगा देगा, उसको मुझे अभी पकड़ के नहीं रखना है। जो जिसको चाहिए ले लो। ओके, भर भर के। इवन आई रिमेम्बर, जस्ट आई हैड टू लीव डेनमार्क 2-3 days और अ वीक बिफोर दुर्गा पूजा। सो दुर्गा पूजा में मैं मोटे मोटे सूटकेसेस लेके जाती थी, और ऐसे करके खोल के रखती थी, और सब लेडीज को बोलती थी जिसको जो लेना है प्लीज ले लो। एंड आई कुड हैव ब्रॉट, हमारे पास बहुत सारे केजीज और थे, बट आई थॉट नो, इट इज बेटर आई जस्ट गिव इट अवे। आई कैन बाय अगेन फ्रॉम हियर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गिविंग, कि आपको कोई डर नहीं, अटैचमेंट। यही वो बोल रहे हैं, सबसे प्यारा जो चीज है उसको देने का कोशिश करो। बिकॉज जब आप दे दोगे, बहुत सारे चीज थे जो मुझे बहुत प्यारा था। असम की मेखला चादर, आपने 2 पीस जो होता है, वो मेरे बहुत प्यारे प्यारे ब्लैक कलर के, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के थे मेखला चादर। एक तो बहुत कॉस्टली प्योर मेखला चादर था, वेरी कॉस्टली, जो गोकुल दी को चला गया, जो वेरी प्योर अराउंड 10,000-12,000 का होता है। कभी नहीं पहना था मैंने वो, कभी। आई नेवर वोर दैट वेंट टू वन ऑफ द दीदीज देयर, and this is how I just gave. And I really felt this, what Wayne Dyer said, कि when सबसे ज्यादा प्यारा चीज आप दे देते हो ना, उसको दर्द होगा देने के टाइम में, लगेगा कि कभी कभी थोड़ा लगेगा कि इतना कॉस्टली या फिर इतना नया कभी नहीं पहना दे रहे हैं, लेकिन जब दे दोगे ना, you'll find a lot of joy in that. Yeah, and I really felt that. Yeah, and यही वो बोल रहे हैं। And then he says, see the folly of ownership in a universe that's eternally composing and decomposing. बोल रहे कि देखो, ये यूनिवर्स जो हमेशा बन रहा है और टूट रहा है, बन रहा है और टूट रहा है, और इसमें फॉली देखो, हम ओनरशिप बनाते, ये मेरा है, ये ड्रेस मेरा है, ये चीज मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, हम मेरा मेरा फॉली में जाते। इट्स अ फॉली, ये कभी कुछ आपका नहीं हो सकता है। इट इज नेवर पॉसिबल। बी विद द वर्ल्ड इन इट एंड एंडोर। एंड ऐसा नहीं कि आप ओन नहीं करोगे, दैट्स व्हाट इज सेइंग, एडोरिंग इट बट नॉट नीडिंग टू पोजेस इट। दिस इज द वे ऑफ पीस, दिस इज द वे ऑफ द दाओ। Okay, don't possess it. Okay, then he said, right this minute, let go of 5 items that you have in your possession. So now it's a activity. Okay, right this minute, let go of 5 items that you have in your possession, putting them in circulation so that others might find them. Next, pick something that has some particular value to you and give it away.
It's important that it be something you really like. For more attachment you have to an item, the greater the joy you will feel as you let it go. This can become a practice of living a life of daily diminishing. So, this is a life of practicing the life of daily diminishing. रोज कुछ ना कुछ खाली करो अपने से, अपने अंदर से, अपने बाहर से, daily diminishing. And next, कॉन्ट्रडिक्शन देखो अभी. कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जितना आप दोगे यूनिवर्स आपको भर भर के देगा. Okay, this is the contradiction. Yeah, in my life, I have seen whenever I have given big charities, big contribution, big sevas and everything, somewhere or the other, the universe again fills you up with so much. And then it says, yeah, this point, it's talking about that this is another, now it is another. So, abhi ho gaya, हम लोगों ने देना लेने का डिस्कशन हो गया, थिंग्स एंड एवरीथिंग. When nothing is done, nothing is left undone. The practice of Tao consists of daily diminishing, decreasing until doing nothing. When nothing is done, nothing is left undone. True mastery can be gained by letting things go their way. It cannot be gained by interfering. Okay. I know for many people it is tough to understand the law of allowing. Okay, कि जहां पे कुछ भी हो रहा है मैं अलाउ कर रही हूँ, मुझे कोई मार भी रहा है मैं अलाउ कर रही हूँ, वैसा एक स्टेट में आना बहुत डिफिकल्ट है. बट फ्रेंड्स, अगर उस स्टेट में आ सकते हो, योर लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग मैजिकल. Art of allowing, we did it right 2 weeks back. The law of great allowing. There was a time I remember I used to fight for everything. There is a way. Yes, in the beginning we have to, chanting में भी हमको सिखाते हैं, chant for what you want and keep fighting for your goal, keep fighting for your goal. But I always told you it's a half and half. You have to really have focused whatever you want in your life. And then there comes another half where you let go. But ज़्यादातर लोग, people who are extremely evolved, वो उसमें भी इतना focus नहीं होते कि what they want. They are always in the state of allowing and letting go. Highly enlightened people are also not focused on what they want. They just lightly बोलते हैं, हाँ ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है. उसके बाद पसंद है रोज एक बार दो बार बोलेंगे, फिर भूल जाएंगे. The next, what they actually do is that very enlightened masters, very magical masters, they go into the art of allowing, letting go. And it is beautiful, friends. I cannot tell you, meditation भी इतना deep होता है ना, जब आप letting go state में होते हो ना, इतना deep होता है, मैं क्या बोलूं. क्योंकि my personal experience is that for years I used to, मैं कुछ किसी चीज के लिए प्रे करती हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए. And what am I doing is that I'm putting a lot of resistance in it. क्योंकि यूनिवर्स वो करना चाहता है किसी और तरीके से, लेकिन मैं बोल रही हूँ ऐसे होना चाहिए, या फिर ये शायद मेरे लिए करेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ होना ही चाहिए, लेकिन शायद वो मेरे लिए करेक्ट नहीं है. बट आई एम पुटिंग सो मच ऑफ फोर्स इन इट कि होना चाहिए, एंड इसलिए वो होता भी नहीं है, मैं सफर करती हूँ, मैं फाइट करती रहती हूँ. Then came a time when I realized that I know that whatever is right for me and whatever I'm dreaming, if it is right, whatever I'm visualizing, whatever I want in my life, if it is right for me, it will come to me. And I allow. और allow का मतलब ये है कि मेरे साथ बुरा भी हो रहा है तो मैं allow कर रही हूँ उसको भी. मेरा one of my friends, her husband had brain tumor, okay, and she messaged me that मैं बहुत stressed हूँ संजुक्ता. She is a meditator but not a very strong meditator. बहुत ज्यादा meditate नहीं करती, थोड़ा बहुत करती है. तो वो ना काफी महीनों से परेशान है हस्बैंड से, तो मुझे मैसेज कर रही है कि संजुक्ता मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मुझे सब कुछ तो ठीक हो रहा है, केमो वेमो सब ठीक चल रहा है, बट मेरा ना सिर दर्द बहुत बढ़ गया है. Okay. And I just told her, I sent her the video, 2 days back. Do you remember I sent you the video of allow, surrender, I allow, I surrender, I allow. I sent her that video. And I said, "Ke, trust me, my friend,
इफ यू रियली सरेंडर इवन योर हस्बैंड्स ट्यूमर, के जो भी हो उनके दिमाग के अंदर कुछ भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, गुजर जाएंगे, क्या होगा, मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ दैट आई विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड इतना ट्रस्ट करती हूँ दैट माई हस्बैंड विल ऑल्सो बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट मैं इसको भी अलाउ करती हूँ, इसको भी अलाउ करती हूँ कि इस कैंसर, इस ट्यूमर को भी मैं अलाउ कर रही हूँ होने में, एंड मैं अपने सिर दर्द को भी अलाउ कर रही हूँ होने में। And is allowance mein, that is what was my guidance her. And I said, you will see in this allowance, you will see your husband will transform faster and your headache will go away faster. This is the paradox in spirituality, friends. जो आप चीज पकड़ के नहीं रखते हो ना, वो जल्दी होता है आपके जीवन में। जो चीज आप पकड़ते हो वो बोलते हैं कि, आपने देखा है ना चेस गेम, चेजिंग, हाँ, कुछ कुछ रिलेशनशिप में ना बोलते कि पीपल आर नॉट एक्चुअली, मेनी पीपल हु आर नॉट कमिटमेंट, दे आर नॉट, यू नो, उनके ट्रॉमास होंगे लाइफ में, कुछ हुआ होगा एंड एवरीथिंग, दे आर कमिटमेंट फोबिक। तो वो दिखाएंगे कि आपको प्यार करते हैं एवरीथिंग, लेकिन कमिटमेंट के टाइम में चेज करेंगे, आप फिर दौड़ोगे, आप दौड़ोगे तो वो रुक जाएंगे। दिस इज अ चेज गेम दैट हैपेंस बिटवीन द टू पार्टनर्स, ओके। और आप जितना दौड़ोगे वो और भी आपसे दूर जाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं दौड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, तो वो फिर से आपके पास आएगा। दिस इज अ चेस गेम इन पीपल हु आर कमिटमेंट फोबिक, अवॉइडेंट रिलेशनशिप्स, ओके। दिखाएंगे कि प्यार कर रहे, बट एक्चुअली में कोई प्यार व्यार नहीं है, इट इज जस्ट दे एंजॉय द चेज, ओके। लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। जिस भी चीज को आप चेस करोगे ना, वो आपसे दूर भागेगा। आप बोलोगे कि मैं थक गई, like that lady, whatever that, some man in that, एक सीरियल था ना, मैं तो थक गई, कुछ नहीं करती थी फिर भी थक जाती थी। खिचड़ी मूवी। तो खिचड़ी थक खिचड़ी गई भाई साहब। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं करती थी, इतनी लेजी थी, बट मैं तो थक गई। बट आप सच्ची मुच्ची अगर थक जाते हो ना, और बोलते हो नहीं मुझे नहीं दौड़ना है, देन दैट्स व्हाई शी वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ अ क्वीन। वो कुछ नहीं उसको कुछ नहीं करना था, उसके पास चीजें आते थे, ओके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, that true mastery can be gained. So what is the true mastery of even manifestation? Is that true mastery can be gained by letting things go their own way, कि ठीक है, जैसा जैसा मेरा मेरा बच्चा बिहेव करना चाहता है, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ये बने, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, टेंशन, ठीक है, तुझे नहीं करना है जीवन में, नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं बनना है, नहीं बनना है। आई अलाउ इवन दिस टू हैपन, दैट माई बच्चा विल नॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, आई अलाउ। You will see the miraculous transformation that happens in your kid when you have this kind of attitude. You have to have a goal कि ये मैं चाहती हूँ, this is my dream for my son or my daughter, but अगर नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है, I allow, okay, and it cannot be gained by interfering. And ये वाला, ये जो art है ना, art of letting go, the mastery of letting go cannot be gained by interfering. तो मैं सीख रही हूँ संजुक्ता से, लेकिन मैं फिर से सीख गई, मेडिटेशन के टाइम में एक्टिंग करके अलाउ कर रही हूँ, एक्टिंग, बट इंटरफेयरिंग हो रहा है दिमाग में, नहीं ये हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, मेरी बेटी ऐसा हो बनना है उसको, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रही है, दैट इज एन इंटरफेयरिंग, so then it is not real allowing, okay, so that's why deep meditation is important. When we go into deep meditation, we can really allow things, we can go into the surrender state, okay, and even, I will teach you how I do it. जैसे उस दिन भी ग्रेट आर्ट ऑफ अलाउइंग पे मैंने किया है, मेरा मेडिटेशन इज लाइक दिस, आई गेट इनटू डीप मेडिटेशन एंड आई से I want nothing, I have nothing. मैं, that is what it is saying, right? The beauty of diminishing. तो मैं अपने आप को मेडिटेशन में पूरी तरीके से बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ और मुझे जीवन से कुछ नहीं चाहिए, आई एम जस्ट एम्प्टी। एंड देन उस स्टेट में ना मैं खाली 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 फील करते करते मैं इतनी डीप चली जाती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ आई अलाउ। कुछ भी चीज अगर मुझे याद आ रहा है ना, स्ट्रेस दे रहा है,
जीवन में, मैं उसको बोलती हूँ मैं अलाउ करती हूँ, तुमको ऐसे बिहेव करना है, अलाउ करती हूँ, तुमको मेरे जीवन से जाना है, मैं अलाउ करती हूँ, तुमको मेरे जीवन में आना है, मैं अलाउ करती हूँ, तुमको ये नॉटी करना है, मैं अलाउ करती हूँ, तुमको नॉटी नहीं करना है, मैं अलाउ करती हूँ। मेरी फ्रेंड बनना है, मैं अलाउ करती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड नहीं बनना है, मैं अलाउ करती हूँ। Okay, this is how I just continuously, even without meditation, also when I am in my awareness state, I keep focusing on am I in that state? Am I in the letting go state? Am I in the allowance state? और लाइफ बहुत स्मूथ हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत इजी हो जाता है when you are in that state. Okay, let's do this again, this meditation of allowing. one Okay, question, letting. one question. Okay, yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ये दोनों बात। हाँ, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि अलाउ तो करेंगे, पर मैनिफेस्टेशन इज समथिंग लाइक वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग विच वी वांट। Okay, और yes. एंड जैसे अभी मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा है आदि, मेरे बेटे को लेके, ऑब्वियसली स्कूल से बहुत ट्रबल हो रहा है। तो वो स्कूल में, एज ही इज एन हाइपर एक्टिव चाइल्ड, ही इज नॉट सिटिंग एट ऑल इन द क्लास फॉर 4 hours, ही इज रनिंग जंपिंग इन द क्लास। तो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग, मतलब मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो बैठे। उसके बाद अभी जैसे अलाउ चीज है, ये दोनों अलग कैसे हो रहा है? मतलब मुझे They are समझ not में नहीं alag. आया। They are अलाउ, not alag. They are. It is like you should manifest, and at the यस, same time, you know, Rumi said, life is a beautiful balance between holding on and letting go. Okay, ये बहुत डीप है, बहुतों को समझ में ही नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। नहीं है। हाँ, हाँ, Life is a beautiful balance of holding on and letting go. And Yogananda also said कि अगर आप अपने ड्रीम को सोचोगे नहीं तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, अगर बहुत सोचोगे तब भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो? डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत यस, सोचोगे मींस लाइक रेजिस्टेंस नीपा, क्रिएट कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउइंग। या लास्ट फ्यू डेज बैक नीपा, शी, कुछ मैसेज उन्होंने दिया था, तो उसने बोला था कि मैं मैनिफेस्ट करके आई जस्ट उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। हाँ, राइट, यस, यस। ओके। और कभी कभी मैं, तो ये भी नहीं होता है, कभी कभी आप इतने ट्रस्ट करते हो आप मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो। समझ रहे हो? एक ऐसा स्टेज भी आ जाता है, ये तो इट्स अ वेरी गुड स्टेज। एंड इवन आई वांट फ्यू थिंग्स इन लाइफ दैट आई रियली से दिस इज व्हाट आई वांट फॉर रिदान, दिस इज व्हाट आई वांट फॉर रिदान, लेकिन मैं, इट इज लाइक काश ये हो। ओके, फिर अगर नहीं भी हो, आई अलाउ। Did you get it? So it's like you visualize, you think about it, and you enjoy it. लेकिन उसको अगर पकड़ के रखोगे तो दिस इज व्हाट, रिमेंबर योगानंदास गाइडेंस, बोल रहे कि वो आप, अगर आप अपने ड्रीम को नहीं सोचोगे तो नहीं होगा फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आपको सोचना है ना, तभी वो यूनिवर्स को रजिस्टर हो रहा है कि आपको वो चाहिए, राइट? आपको वो चाहिए। एट द सेम टाइम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इट मीन्स नॉट लेटिंग गो स्टेट, नॉट अलाउंस स्टेट। वहां पे योगानंदा ने ये भी बोला है कि आप अपने ड्रीम को बहुत ज्यादा सोचोगे तब भी वो पूरा नहीं होगा। So this is where the resistance state comes. Correct? Nipa has understood it very correctly. It is difficult to follow, but once you catch it, as for example, my life has become beautiful after understanding, and understand karna alag hai. My life has become like that. আর আমার একটা প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, আমার বলো যে বলো। হ্যাঁ, দুপুরবেলা ঘুমাই, দুপুরবেলা একটু রেস্ট নেই, ঘুমাই বলতে কি একটু রেস্ট নেই তো দোকান থেকে এসে রেস্ট, হ্যাঁ, সাথে 2 মিনিটে চারিদিকে একই মাথায় ঘুরতে থাকে কথা, কিন্তু চোখ পট করে লেগে যায় 2 মিনিটে, রাত্রে ঘন্টার 2 ঘন্টা পার হয়ে যায় একই কথা। মানে ওই যে আমি কি বললাম, আমার হাজবেন্ড নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই, আমার 2 বাচ্চা নিয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদে কোনো কমপ্লেন নাই, বা 2 বাচ্চা নিয়ে মানে ছোট থেকে কোনো কমপ্লেন নাই। বড় মেয়েটা একটু চঞ্চল ছিল, যাই হোক, ওইটা ওই বয়সে হয়, এটা এইসব সব এখন গেছে গা, যাই হোক। কিন্তু যে আমার ওই যে অন্যের মানুষের কথাই শুধু মাথায় আসতে থাকে, মানে কি, যেহেতু আমি অনেকটা বছর চুটাইয়া সংসার করছি, কয় বাংলা ভাষায়। বৌদি আমি একটা কথা, একটা very good funda, okay? And I really learned it from Pradeep sir. He's an amazing master, okay? He has really taught me a lot of things that I'm really grateful about and I'll not forget. And one of it is, you know, very, very simple things that he teaches, but he will teach you very practical things. Take bath, Bodhi.
রাত্রেবেলা শোয়ার আগে চান করে ঘুমো গরম জল দিয়ে। আচ্ছা, ওকে, তার রিজনটা মানে কি? কি হ্যাবিটের মধ্যে পরিণত, যে আগে যে মেয়ের সাথে একটু জাগা থাকতাম, মেয়ের সাথে পড়াশোনা হ্যাঁ দিতাম, আমার আমার না হ্যাঁ, অভ্যাস, মেয়ে না মানে ঘুমালে আমি ঘুমাই আমি যাবো। আপনাকে বলতেছি, I'll give you an example, হুম। that day before yesterday, um, day before yesterday, like sometimes, Rizan is at home. I'm not taking classes in the evening. Saturday I didn't take class. Before taking class I'll take, আমি চান করি, হ্যাঁ, before, in the evening 9:30, before taking class I will take bath and I'll sit for class. Even if it's 9:30, I'll take bath. At 9 I'll take bath and I'll sit for class. Okay. And evening Saturday, because I was having fun with Ridan, we watched movie because I have to keep him busy. I'm the only person taking care of him, so we said let's watch, हम मूवी देखते हैं। मैंने रिदान को बोला रिदान को बोला हम मूवी देखते हैं, चलो रिदान एंड एवरीथिंग। मैं नहाना भूल गई। ओके, सारी रात मुझे नींद नहीं आई भाभी, 4-5 बजे तक मैं जगी हुई थी। और फिर कल मैंने क्या किया, कल मैंने फिर से, मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए, मैं क्लास ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, मैं कल तो नहा के ही सोऊंगी। ओके। और उसके बाद कल मैं नहाई सोई, इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स मैं पूरी डीप नींद में आ गई थी। ओके। रीजन क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है ना, हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे लोगों से बात करते हैं, इतना एनर्जी हमने अट्रैक्ट किया है अपने बॉडी में, अपने लाइफ में। हाँ, सबसे कितना दुकान से आप आते हो एंड एवरीथिंग, इतना कुछ सुनते हो, इतना कुछ है, सब कुछ ना हमारे बॉडी में वो लग जाता है, वो अटैच हो जाता है। उसके बाद ना नींद अच्छे से आएगी नहीं। अगर आप थोड़े गर्म पानी से, हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से आप थोड़ा नहा के सोते हो ना, आप देखना आपको एटलीस्ट नॉर्मल जैसा होता है उससे बेटर नींद आएगी। और सेकंड इज लेटिंग गो, अलाउइंग। मैंने जो बोला है ना, आप लोगों को बोला है कि अलाउ करना सीखो, कि अच्छा नींद भी नहीं नहीं आ रही है, उसको भी मैं अलाउ करती हूँ। मुझे मेरा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बहुत कुछ चीज में ना फोर्स करती थी, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, मेरे जीवन में ना, मेरे चार्ट्स, माई चार्ट्स आर लाइक दैट आई एम अ नाइट पर्सन। आई कैनॉट वेक अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम अ नाइट पर्सन। मुझे 2 बजे तक जगा के रख दो, मैं पूरी उल्लू जैसी आंख खोल के मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा टाइप। 2-3-4 बजे तक जगा के रख दो, और सुबह नहीं। तो मैं ना फाइट करती थी, कितने सालों से फाइट करती हूँ, अरे मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ, सब लोग उठ पाते, मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ। बट माई kundali is like that I work more on night. Then one day I was realizing that maybe in past lives many yogis na, they used to sleep, they used to meditate throughout the nights, and बाद में सुबह में सोते थे। Many yogis, even Swami Rama, used to meditate throughout the night. Maybe I formed such a habit, मेरे सारे रात जगने का, मेडिटेट करने का, कि इस जन्म में मेरा अभी भी वो स्ट्रगल बन गया है। और मैंने ना उसके बाद ना मैंने बोला कि आई अलाउ, अच्छा मेरे साथ, मैं रात में जगती रहती हूँ तो जगती रहती हूँ, मैं उसको अलाउ करती हूँ, मैं उसी को अलाउ करती हूँ। मैं उसके साथ फाइट नहीं करूंगी। कि कभी कभी आप देखना, आई एम टेलिंग यू, मम्पी, sometimes we think by fighting and manifesting we will be able to manifest. This one this one to just sleep early and to wake up, sleep early and to wake up early, has, आपको नहीं, 23 साल I am into spiritual world, I have been able to transform so many things, but this thing has not transformed in my life. Sometimes the universe also have a reason for not transforming this area. ओके। तो तब ना आपको समझ में आना चाहिए कि ये आई हैव टू ट्रस्ट कि ये नहीं होगा, किसी वजह से ये यूनिवर्स चेंज नहीं कर रहा है, सो मैं उसी को एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं होगा, एंड आई अलाउ। और उसमें क्या करूंगी मैं, फिर ना अपने आप को ट्विस्ट करूंगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं रात में मेडिटेशन कर लेती हूँ, मैं रात में किताब पढ़ लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरे रात बहुत डीप मेडिटेशन होते हैं, मैं बुक्स कंप्लीट कर लेती हूँ रात में। Okay, so sometimes we think that, sometimes even Eckhart Tolle is saying कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। In reality बहुत कुछ, आप बहुत जगह आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते बहुत जगह, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स भी नहीं चाहता है वो एरिया में आप मैनिफेस्ट करो। तब आप क्या करोगे, तब यू हैव टू गेट इन टू द स्टेट ऑफ अलाउंस। आप अलाउ करो।
और जब अलाउ करोगे ना, वो नेचुरली आजकल मैं देख रही हूँ कि उतना ज्यादा जैसे मैं पहले सफर करती थी, उतना ज्यादा मैं रात की नींद के साथ सफर नहीं करती हूँ पहले जैसा। अभी भी है, समझ रही हूँ कि लेट सोती हूँ, बट मैं मेरा इट इज अ जॉयफुल लेट स्लीप, समझ रहे भाभी? वैसा दर्द वाला हाँ। स्लीप नहीं है मेरे साथ अभी। मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, लेकिन मैं सफर नहीं करती हूँ आपके जैसा एनी मोर। ओके। यस আর यस। আরেকটা যে থেরাপিস্ট সময় যে একটা পাথরের কথা বলছিল না, কি हाँ পান্না না, কি মানে কি আমার কালকে হয়তো আমি করতেও পারি, কালকে থেকে 15 দিন আমি নাও মানে করব না, কারণ মেয়ের কাছে যাচ্ছি, ঠিক আছে, अच्छा পাঞ্জাব যাচ্ছি। তো মেয়ের अच्छा। একটা এক্সাম আছে, আর পার্সেসও আছে দাদার, দাদাকে তো हम्म একা ছাড়ি না, তাই हम्म। যাচ্ছি। 15 দিন মতো লাগবে, আমি করব না। তাই কলকাতা যদি যাই, পাথরটা মানে ওইখান থেকে যদি আনতে পারি স্টোনটা, হ্যাঁ কি আমার বলছিলেন দেখে বৌদি? অনেক কিছুই তো আছে। পান্না আহ পান্না টাইপের কিছু, মানে সব যেটা মানে অ্যাস্ট্রোলজার না দেখিয়ে যেটা পড়া যায় আর কি। হ্যাঁ আমি ভুলে গেছি বৌদি, আমি দেখে আমি আপনাকে বলছি। ওকে। আমাকে বলে দিলে মানে ভালো হবে, কেন আমি কলকাতা ঢুকবো তো, কলকাতা থেকে তাহলে নিয়ে আসবো জিনিসটা। হ্যাঁ ওটা আমি গ্রিফের জন্য বলছিলাম, আপনি অনেক দুঃখ ধরে রাখেন তো, আমার মনে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার খুব এখনো এটা আজকেও প্রশ্ন ছিল আমার, মানে কি সবকিছু দেখি কি চারিদিক দিয়ে, আবার নিজেকে বুঝি আমি সবই তো ঠিক আছে, তাও কেন কালকে তো সানডেটা একটা মানে জাস্ট ঘরে একটা কিছু একটা মানে হুম। খালি দুঃখ, মানে মনটার মধ্যে শুধু মানে কান্দি এরকম মনে হয়, খুব দুঃখ হ্যাঁ লাগে হ্যাঁ। মানে ওই মানে জিনিসটা আমার see I সারাক্ষণ। have to also আর make ভয় all of you লাগে। understand 40 up perimenopause and you are almost at the state of menopause, so it is না, also কিছু একটা physical phenomena. ভয়, কিছু একটা ভয় লাগে, দাদার শরীর খারাপ কিছু হয়ে গেলে কি হ্যাঁ হইব, হ্যাঁ। মানে না ওই বৌদি চিন্তাটা আমি বেশি কি আছে। বলতেছি, you are around the menopause time না, so হ্যাঁ হ্যাঁ it is হ্যাঁ। also natural. Okay, again if আহ, you আহ, আহ, accept that thing that I'm going through menopause, then also এগুলো menopause এর টাইমে উল্টো পাল্টা পাগল, you know, many women they ও commit suicide. অনেক women they commit suicide around menopause. From 40 to 55 maximum amount of suicide happens, and menopause তো और भयंकर। Okay, so don't blame yourself, accept okay menopause। এত ব্রেনে ভাববেন না, মেনোপজ হচ্ছে, আচ্ছা আমি অ্যালাউ করছি মেনোপজ হচ্ছে, আই এম গোয়িং থ্রু দ্যাট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে। এটা এটা হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ সময় আপনি ভাববেন না যে আমার মধ্যে কিছু ভুল আছে। আমার মা কেমন পাগল পাগল হয়ে গেছিল কয়েক বছর, উল্টো পাল্টা কথা বলতো, কি কি করতো, রাগ করতো, কেমন ঝগড়া করতো কোথায় কোথায়। আর এটা একটু মানে ফিমেলসদের স্পেশালি হরমোনাল চেঞ্জেস এর জন্য খুব হয়। আমার যেরকম হ্যাঁ। ছিল আফটার মাই মাই চাইল্ডস বার্থ, পোস্ট হুম। প্যার্টাম ডিপ্রেশন তো খুব হাই ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বেশি। মানে আমি পারলে আমার নিজেরই ছেলেরই মাইরা ফেলাই, মানে অনেক হ্যাঁ টাইপের, মানে কোয়াটা খারাপ অনেক হ্যাঁ সবার সামনে। absolutely, no no, it's true, it happens with আমি everybody, আমি you are not an আমি যেটা exception. ফেস মানে করছি, মানে সেটা আমি কইতাছি, আমার অনেক বেশি পোস্ট প্যার্টাম ডিপ্রেশন ছিল, অনেক হাই। তো হুম হুম সেটা তো এগুলো একটা হুম। হরমোনাল চেঞ্জেস এর জন্য হয়, আমারও হয় অনেক We সময়। women go through so much, you know, men who are college shivas, you know, shivas. But, you know, you will see that when you are in your men can really handle women when they understand what women go through. We go through so much of pain in the body. Okay, and real man will, instead of blaming you, hurting you, telling you all these things, now they will understand that my lady is going through so much pain, let me hold her, let me just pamper her, let me take care of her. Okay, we go through so much, friends, you know, we need so much of pampering, and thanks that, you know, be grateful if you have a good partner to understand you, that we go through so much. না বৌদি, দাদার কিছু হবে না, আপনার এগুলো ফালতू ভয়, এগুলো এই হরমোনাল আপ ডাউন, आपका हॉर्मोनल अप डाउन की वजह से ये सब हो रहा है। ओके, डोंट वरी टू मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। यस हैप्पी दी, यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस संयुक्ता, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि जब हम लेट गो करते हैं, मीन्स किसी का बैड बिहेवियर भी हम लेट गो कर रहे हैं, या मतलब हाँ। वी आर एक्सेप्टिंग आवर लाइफ, तो क्या ये ऐसा नहीं होता कि हम कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं और नहीं, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कुछ ऐसा? see, what happens is, what I'm saying is that, see, when nothing is done, nothing is left undone. Okay, इसका मतलब ये है, you know, मैं जैसे अभी ना राइट नाउ मैं ना एकदम मैं डीप मेडिटेशन में जाती हूँ, मैं रोज बोलती हूँ मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है सारा दिन।
ऐसे करके मैं बैठती हूँ. ओके, मुझे आई वांट टू डू नथिंग. I want to do nothing. I just want to go into deep meditation and be with you, universe. I want nothing. I have nothing. I need nothing. And I let go. I surrender. I allow. ऐसे में बैठती रहती हूँ. मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ना सारा दिन बैठना है, सारा दिन बैठना है. बट फिर मैं इसमें हल्का सा इंटेंशन देती हूँ कि मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाना चाहिए. मेरा जो जीवन में जो जो मेरे पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, उनको उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाना चाहिए. ऐसे करके मैं बैठती हूँ. परसों ही मैं बैठी थी कि मुझे रिदान को मैंने खाना दे दिया, मैं नहीं खाऊंगी, मैं रात के 12 तक मेडिटेट करूंगी फिर जाके खाऊंगी. कल या परसों परसों रात को ऐसे उसको खाना दिया, डिनर दिया, मतलब बाबा खा ले. फिर उसके बाद मैं ऐसे बैठी और मैं कंटिन्यूअस ऑलरेडी 2 घंटे से कर रही थी मेडिटेशन. मैं बोल रही थी और भी करना है, बट आई लेट गो, आई सरेंडर. मुझे डीप मेडिटेशन, नथिंगनेस में जाना है बस. बट अचानक से ना मैंने क्या किया, अचानक से मैं आंख खोली, उठ गई, खाना लेने चली गई, खाना लिया, रिदान को बोला मूवी लगा, चल एक साथ में मूवी देखते हैं. तो यूनिवर्स पुश्ड मी कि अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे बेटे के साथ मूवी देखना. वो मुझे खुद लेके चले गए कि मुझे अभी बेटे के साथ मूवी देखना है. तो हम लोग फिर बिंदास 2-3 घंटे एक बहुत कॉमेडी मूवी देख के, मेरा बेटा हा 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 करके हंस के फिर उसको सुला दिया. फिर रात के टाइम में मैं लेट सोती हूँ, फिर मैं बैठ गई, फिर मेडिटेशन करने चली गई. सो व्हाट इट ऑल्सो मीन्स इज दैट व्हेन नथिंग इज डन, नथिंग इज लेफ्ट अनडन. इसका मतलब ये है कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास क्या लूंगी एंड एवरीथिंग, मैं डीप मेडिटेशन में हूँ. यू नो मैं क्या लूंगी, मैं जस्ट एक इंटेंशन छोड़ा, यूनिवर्स इन लोगों को क्या चाहिए आज, आप लो, और फिर मैं डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ. ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन इट फील्स एज इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. समझ रहे हो आप? इट फील्स एज इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. फ्लो स्टेट में चले जाते हो नेचुरली. आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको करा रहा है. तो मैंने अचानक से ऐसे बुक खोला, 49 वर्स, वेरी गुड वर्स, इसको हम पढ़ते हैं. आप मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई एफर्ट दिया, लेकिन आप लोगों को जो मिलना था वो मिल गया. ओके, इट्स अ प्रोसेस. हैप्पी दी. एक मिनट नीपा, I'll get back to you and let me just finish it off. Yes, Happy Di, did you get it? यस संजुक्ता. Yeah, in the same way. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बोलेंगे मुझे आई लेट यू गो, तुमको जो करना है करो. हाँ, मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं कभी कभी काली बन जाती हूँ, आपने देखा नहीं मेरा वो रूप. ओके, वो नेचुरली यूनिवर्स मुझसे करवा देता है किसी को ठीक करने के लिए. कभी कभी शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स को किसी को ठीक करवाना है. जैसे मेरे वॉलंटियर्स को डांट मिली, भयंकर डांट, निपा को डांट मिली, वो नेचुरली मुझसे हो रहा है. उनको मिलना था वो डांट उनके ओके. लर्निंग्स के लिए. हम्म. समझ रहे हो? सो इट्स एन ईगोलेस स्टेट जहां पे आप मुझे बोल दिया, वो स्टेट से नहीं होता है, वो नेचुरली निकल आता है. एंड नथिंग लीव्स अनडन, आई एम टेलिंग यू, नथिंग. मेरा पढ़ाई हो रहा है, मेरा मेडिटेशन हो रहा है, मेरा बेटे का देखभाल हो रहा है, मेरा घर हो रहा है, एवरीथिंग, मेरे फ्रेंड्स सारे, सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग. आई एम नॉट लिविंग इन एन आइलैंड. The more, actually, frankly speaking, the more I am going into deep letting go, the more I feel that the more gets done. That's what he's saying. इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है. इट्स अ वेरी, you will come to know when you go deep, many years आप प्रैक्टिस करोगे, आप और ज्यादा इसको समझोगे. ये दिमाग से नहीं समझ सकते, ये लाइफ आपको करवा देता है. ओके ओके, थैंक्स. लेट्स, थैंक्स yeah, संजुक्ता. thank you. I will now go to Nipa's question. Friends, we will extend the meeting. Anybody who wants to leave can leave. We will do it for another 20 minutes or 30 minutes, okay? Because we need to do meditation also. Nipa, I want to see your question. Didi, I have a question. I never expect recognition or praise when I work, but when I was told to do something, I tried my best to do it. Some days earlier, I was told to work. Another person also told to do the same thing, but the person who told us
do the work, only praise the work or other people. I don't want to be sad when this kind of situation arises. How to handle such situations, Didi? Hope you understand what I'm trying to say. Okay. Yeah. So, yeah. So, this is what I do with my inner child. Okay, you know, do you remember? I shared you with Sri Sri Ravi Shankar's guidance. He says how weak it is to expect respect from others. It's a weakness to expect respect from others. क्योंकि वो आज देगा कल नहीं देगा. Okay, and when you start giving that respect and love to yourself, you naturally become a magnet. Again, it is a paradox, friends. जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, रात के टाइम में जो हम बोलते हैं कि अटैचमेंट अपने अटैचमेंट्स को निकालो. जब आप किसी भी चीज इंसान या किसी भी चीज से अटैचमेंट दूर करते हैं, वो और भी ज्यादा आपके पास दौड़ के आता है. समझ रहे हो? दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि जो भी चीज आप ऐसे करोगे वो ऐसे आएगा, आप दौड़ोगे वो भागेगा, आप ऐसे करोगे तो वो ऐसे जाएगा. Okay, so that is why when you are feeling like this, what I personally do is that we are humans. We might want, you know, कभी कभी लगता है मुझे बहुत प्यार की जरूरत है बट कोई नहीं है मुझे प्यार देने वाला. फिर मैं बोलती संजुक्ता मैं तुम्हें प्यार दूंगी, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दूंगी. मैं एकदम बेबी जैसी उसको ऐसे करती हूँ पकड़ के, तुमको बहुत प्यार दूंगी, मैं बहुत तुमको बहुत रेस्पेक्ट दूंगी, मैं तुमको बहुत वैलिडेशन दूंगी कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम बहुत वर्दी हो, तुम बहुत रेस्पेक्ट वर्दी हो. जब तक वो फील नहीं करती मैं उसको देती रहूंगी देती रहूंगी देती रहूंगी. Then when you are full now, you will no longer expect anything from others. And when deep down, somewhere deep down, you still expect Nipa. That's why you're not getting. Did you get it? That's the paradox. You are still somewhere deep down expecting that recognition. The moment expect करोगे, और वो भी natural है, up down होगा, कभी expect करोगे कभी नहीं expect करोगे. But the moment you see you are expecting, और भी ज्यादा वो आएगा नहीं आपके पास. आपको recognition चाहिए, वो आएगा नहीं. आपने देखा ना, एक तो डांट मिला और 1 महीना 2 महीना किसी को कोई वॉलंटियर को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला. I said I will not give till I see that they are really doing their job without any validation. It got on its own. आज it was like you were showered with all my gratitude and love. Okay, so please follow that.